हाय एवरीवन, दिस इज सौम्य this side. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल. आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन इंडिया वर्सेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन कनाडा के बारे में. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल एवरीथिंग यू वांट टू नो अबाउट कनाडा, द जॉब अपॉर्चुनिटीज, द वीजा सिचुएशन, पीआर चाहिए कि नहीं चाहिए कनाडा में जॉब करने के लिए, एग्जैक्ट मंथली ब्रेकअप ऑफ योर एंटायर कॉस्ट ऑफ लिविंग, द इनकम दैट यू कैन अर्न as a software engineer in a FANG level company, as well as a software engineer in an average company, as well as the taxes that you give, and ultimately how much you can save in comparison to that of India. So if you are someone who is interested to know about everything that you can with respect to software engineering in Canada, then this is the perfect video for you. Before starting, I must say the like target of this video is 1.5 thousand likes. So go ahead and smash the like button, subscribe to the channel if you have not already, hit the notification bell and share this video among your friends and peers. It will definitely help me a lot. Now, without further ado, let's get started. So Canada is probably one of the most popular destinations around the world for Indians to travel, immigrate and relocate to. And that's why probably मैंने अपने चैनल में इतने सारे जो comparison videos बनाए हैं with India and other countries, कनाडा का बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था, एंड आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो फॉर इट. अमॉन्ग ऑल द डेवलप्ड नेशंस दैट आर आउट देयर, डेफिनेटली कनाडा हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स स्ट्रक्चर्स दैट इज प्रेजेंट आउट देयर. तो आप जितना अर्न करोगे कनाडा में, डेफिनेटली फ्रॉम अ टैक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा. Apart from that, there are quite a few companies that are actively hiring in Canada, and you do not require a PR beforehand to go and shift to Canada. आप कनाडा में वर्क वीज़ा के साथ जा सकते हैं और उसके बाद PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं. उसके पहले ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. Some of the top companies that are hiring right now in Canada from India, as well as they sponsor the entire visa, is Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Instacart, Snapchat, to name a few. अगर आपको in-depth video चाहिए in सारे companies and all the other companies that do sponsor visa in Canada, then comment down below. I'll gladly make that video. One more announcement. Soon in my channel, I will be dropping another podcast with my friend who is working in Facebook London. तो अगर आपको कोई specific question है with respect to getting a job in Facebook London or in general Facebook के बारे में, then comment down below. I'll make sure to ask him those questions as well. Now, without wasting any further time, let's just jump into the detailed analysis and comparison between India and Canada. Just like all my previous videos, जहाँ पे मैंने इंडिया को कंपेयर करा है सिंगापुर से, इंडिया को कंपेयर करा है यूके से, इंडिया को कंपेयर करा है यूएसए से, यहाँ पे भी in a similar fashion we will be doing this comparison for India and Canada. Exact monthly recurring expenses का जो breakdown है उसको fill करेंगे, yearly expenses जो होता है उसको fill करेंगे. उसके साथ साथ we will see what income can you expect as a software engineer in a FANG level company, what income can you expect as a software engineer in an average company. We will see the taxes as well as the net savings that you can expect to do in Canada in these companies and compare them to that of India. Vancouver is one of those cities in Canada apart from Toronto जहाँ पे टेक कंपनीज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दैट सिटी एज माय बेस. सबसे पहले किसी भी सिटी का जो सबसे मेन मेजर मंथली रिकरिंग एक्सपेंस होता है वो आपका रेंट होता है. तो अभी अपन चेक करेंगे कि वैंकूवर में जो रेंटल ट्रेंड है इन द मंथ ऑफ अगस्त, इन द मंथ ऑफ जुलाई, वो कैसा था. So in case of Vancouver, a studio apartment on an average is costing around 2,150 Canadian dollars. However, a one bedroom apartment is costing you around 2,500 Canadian dollars. हम एक conservative estimate लेंगे, so we are taking somewhere around $2,300. अब rent के साथ साथ आपका आ जाता है utilities. Utilities में generally electricity, water, sewage, renters insurance, ये सारी चीज़ें आ जाती है. Generally on an average for any developed country अगर आप देखोगे utilities ranges somewhere around 170 to 200 Canadian dollars. तो यहाँ पे भी हम लोग 200 Canadian dollars ले लेंगे. उसके बाद आ जाता है लंच. फॉर लंच ऑब्वियसली यू आर लिविंग आउटसाइड, सो टिपिकली यू विल टेंड टू ईट आउट एज वेल, क्योंकि जनरली पीपल डू दैट. लंच आप ऑफिस पे ही करोगे या ऑफिस के आसपास किसी ईटरी में करोगे, किसी कैफ़े में करोगे, किसी फूड ट्रक में करोगे फॉर दैट मैटर. क्योंकि यार हर दिन आप खाना बना के तो नहीं ले जा सकते. अगर आप अकेले रह रहे हैं तो मोर ऑफन देन नॉट आप हर दिन ये जो लंच है वो बाहर ही करोगे. यार हम यहाँ पे हैदराबाद में बैठ के भी बाहर ही लंच कर रहे हैं ऑलमोस्ट हर दिन, तो आप वहाँ पे तो ज़रूर करोगे. तो जैसा कि आप देख ही रहे हो,
अगर आप बेसिक लंच का कंसिडर करेंगे कि आप एक डिश लेंगे, उसके साथ साथ एक ड्रिंक लेंगे और मे बी एक साइड लेंगे अगर आपका मन करेगा, या फिर टिप वगैरह टैक्स वगैरह इंक्लूड करके जो टोटल खर्चा आपका होगा वो ऑन एन एवरेज विल बी समवेयर अराउंड 20 कनेडियन डॉलर्स। तो अगर हम 22 डेज कंसिडर करते हैं तो ऑल इन ऑल इट comes out to around 440 Canadian dollars in a month. नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन का। अनलाइक यूएस, द पब्लिक ट्रांजिट इन कनाडा इज सुपर गुड। बोथ मेट्रो, ट्रेन्स, बसेस, एवरीथिंग इज देयर एंड इट इज द एंटायर सिटी इज वेरी वेल कनेक्टेड। जनरली वैंकूवर को इन्होंने 3 जोन में बांटा हुआ है, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। जोन 3 बहुत ही दूर हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ वैंकूवर एंड द प्लेसेस वेर यू विल बी स्टेइंग एंड विजिटिंग फॉर मोस्ट यूज केसेस। तो हम लोग जो देखेंगे वो है मंथली पास देखेंगे फॉर एन एडल्ट ऑफ जोन 2 which amounts to around 137 Canadian dollars. अब सिंस हम लोग बाहर इतना ज़्यादा खा रहे हैं, लंच बाहर कर रहे हैं, वी विल बी ऑर्डरिंग सम फूड, ईटिंग आउट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो ग्रॉसरी एक्सपेंस है दैट विल बी लेसर। हाउएवर इफ यू डू डिसाइड टू मेक फूड ऑन योर ओन मोर ऑफन देन नॉट, देन आपका जो लंच का एक्सपेंस होगा या ईटिंग आउट का एक्सपेंस होगा वो रिलेटिवली कम हो जाएगा और आपके ग्रॉसरी एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे। हमने यहाँ पे $150 ग्रॉसरी का कंसिडर किया है। अब नेक्स्ट आ जाता है फ़ोन, एंड सिमिलर टू व्हाट वी हैव कंसिडर्ड इन इंडिया, जो कि जियो हमें देता है अराउंड 1.5 GB पर डे फ्री मोर और लेस डेटा, जिस भी प्राइस पॉइंट में देता है। तो सिमिलर सा डेटा प्लान भी हम कंसिडर करेंगे फॉर कनाडा। सो कनाडा में कई सारे मोबाइल ऑपरेटर्स है, बट जो सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर है एंड सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं जिसका नाम है रॉजर्स। एंड फ्रॉम ऑल द प्लान्स दैट रॉजर्स हैज टू ऑफर, हमारा जो इन्फिनाइट 45 GB का प्लान है दैट इज समथिंग दैट इज ए कंपेरेबल टू दैट ऑफ इंडिया एंड मे बी अ बिट मोर देन दैट ऑफ इंडिया। तो फ़ोन बिल के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे $95 पर मंथ। नेक्स्ट एक्सपेंस है जिम का, एंड सिमिलर टू ऑल ऑफ द अदर वीडियोज़ हमने इस वाली वीडियो में भी 24 आवर फिटनेस को ही कंसिडर करा है। हाउएवर वन थिंग दैट यू विल बी सरप्राइज टू नो इज दैट 24 आवर फिटनेस का जो वैंकूवर में एटलीस्ट जो जिम है वहाँ पे अगर आपने ईयरली पास ले लिया दैट इज सुपर चीप। इनफैक्ट इंडिया से भी ज़्यादा चीप है। फॉर एग्जाम्पल ऑन अ ईयरली पास द एक्चुअल फी दैट यू हैव टू पे इज अराउंड $300 विच कम्स टू अराउंड $25 पर मंथ। नाउ कम्स ईटिंग आउट। फॉर ईटिंग आउट व्हाट आई विल कंसिडर इज दैट यू विल बी गोइंग आउट एंड ईटिंग इन अ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट फॉर 4 times in a month and you will be ordering food in 4 times in a month from whatever place you find. आप अगर एपेटाइजर देखोगे तो वो 30 $1 का आ जाता है, मीन्स आपको $50 का आ जाता है, साइड वगैरह अगर आप लोगे तो $10-20 का एक्स्ट्रा आ जाता है। उसके साथ साथ अगर आप डेजर्ट वगैरह लेने लग गए तो उसके अलग और चार्जेस लग जाते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट रेस्टोरेंट्स ऑब्वियसली प्राइस थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे होगा। तो हम ये कंसिडर करेंगे कि अगर आप बाहर खाने जाते हैं तो आपको अराउंड $75 का खर्चा हो जाएगा और अगर आप ऑर्डर इन करते हैं तो आपको अराउंड $25 का खर्चा हो जाएगा। यहाँ पे टिप आर इंक्लूडेड। अभी मूवीज़ में जैसा कि आप पूरे बुकिंग फ्लो को देख ही रहे हो, तो यहाँ पे मैंने ट्राई करा है कि वैंकूवर मेट्रो रीजन में सराउंडिंग एरियाज़ में एक मूवी बुक करने का ट्राई करा है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर यूज़ केस मैंने लिया है बुलेट ट्रेन, विच इज़ अ फेयरली रिसेंट मूवी दैट हैज़ कम आउट। एंड उसका अगर आप कॉस्ट देखोगे तो द टिकट फॉर वन पर्टिकुलर एडल्ट इज समवेयर अराउंड $15 एंड उसके साथ साथ अगर आप एक पॉपकॉर्न भी ऑर्डर करते हो तो दैट कम्स आउट टू बी अराउंड $7.86। तो ऑल इन ऑल जो टोटल आपका खर्चा हो जाएगा, इवन इफ़ यू डू नॉट ऑर्डर एनीथिंग एल्स का, अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं ऑर्डर करते हो तो अराउंड $24 का खर्चा हो जाएगा फॉर अ मूवी। मेड एंड कुक का खर्चा तो नहीं है क्योंकि बाहर जाओगे तो ये सब तो नहीं कर सकते, सब खुद ही करना पड़ेगा। एंड फॉर शॉपिंग ऑन अ मंथली बेसिस आई हैव कंसिडर्ड समवेयर अराउंड $400। नाउ दिस शुड काइंड ऑफ include anything and everything that you buy on top of all of these things that we have considered, and it does not include one-time purchases that you might do. तो कपड़े वगैरह, जूते वगैरह, गैजेट्स वगैरह एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा मोर और लेस, अगर आप $400 इंटू 12 मंथ कंसिडर करोगे तो ऑल इन ऑल जो मंथली आपका रिकरिंग एक्सपेंस आ जाता है इन अ सिटी ऑफ वैंकूवर विद अ गुड डिसेंट लाइफस्टाइल, वो है आपका $4,171। अभी अगर आप ड्रिंक एक्सेट्रा करते हो देन ऑब्वियसली द एक्सपेंसेस कैन गो मच हायर एंड आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट स्टफ एट ऑल। अभी नेक्स्ट आता है कमिंग होम, एंड हियर वी हैव कंसिडर दैट यू विल बी कमिंग टू इंडिया एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, एंड उस केस में विथ स्टॉप ओवर भी आपका जो कॉस्ट है दैट इज कमिंग टू अराउंड 1.2 lakhs फॉर अ राउंड ट्रिप। एंड ये तो स्टॉप ओवर के साथ है विच इज़ ऑब्वियसली नॉट डिज़ायरेबल एट ऑल, क्योंकि आप 32 घंटे लगा के तो नहीं आओगे। तो अगर आप नॉन स्टॉप जर्नी देखेंगे देन इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड
1,60,000 INR, which is around 2,600 Canadian dollars, which is very expensive. ये तो हो गए expenses की बात. But आखिर how much you will be earning as a software developer in FANG level companies or as a software developer in an average company, ये तो हमने बताया ही नहीं. So now we have come to a very interesting part of the video, and here we will discuss the salary, the taxes, we will compute the savings and see whether it is worth it or not. एक गेम खेलते हैं. बिफोर गोइंग एनी फर्दर, कमेंट डाउन बिलो आपको क्या लगता है कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन वैंकूवर इन अ फैंग कंपनी, हाउ मच एक्स्ट्रा you will be able to save than that of what you will be able to save in India at a comparable company. Comment down below your guesses. Let's see कौन कितने करीब होता है. Salary point of view as an SDE2 in Canada, in a good FANG level company, you will be earning somewhere around 200,000 Canadian dollars. Correspondingly, in Vancouver or an average company, you can expect to earn somewhere around 120,000 Canadian dollars. Canada में टैक्सेस बहुत ज़्यादा है. 200,000 कैनेडियन डॉलर्स के ऊपर आपको जो टैक्स देना पड़ रहा है वो है 67,699 एंड उसका मार्जिनल रेट इज़ 46%. जिसका मतलब इसके ऊपर आप अगर $1 भी कमाते हैं तो आपको 46 सेंट टैक्स में देने पड़ेंगे. मतलब अगर आप $100 कमाते हैं तो $46 आपको इसके ऊपर टैक्स में देना पड़ेगा. एंड उसके बाद $120,000 के लिए द टैक्स रेट इज अराउंड 32,900. इससे हमें ये पता चलता है कि इन वैंकूवर मोर और लेस यू विल बी एबल टू सेव समवेयर अराउंड 48 lakhs. अभी यहाँ पे एक चीज़ जो हमें नोटिस करनी है वो है कि हमने यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस या कार इंश्योरेंस नहीं लिया है. एंड वी हैव कंसिडर्ड कि आप कार नहीं ओन करते हो, तो अगर आप कार ओन करते हो तो उसमें जो कार इंश्योरेंस लगेगा दैट इज वेरी एक्सपेंसिव. अपार्ट फ्रॉम दैट, वन मोर थिंग दैट आई वुड वांट यू टू बी माइंडफुल ऑफ इज दैट कि इंडिया में जो हमने SD2 की सैलरी कंसिडर करी है दैट इज अराउंड बॉटम ऑफ द बैंड फॉर अ फैंग लेवल कंपनी. हाउएवर इन केस ऑफ वैंकूवर हमने बॉटम ऑफ द बैंड नहीं कंसिडर करा है. ऑल इन वैंकूवर फैंग यू विल बी एबल टू सेव समवेयर अराउंड 48 lakhs. In India, for the salary of 55, you will be able to save somewhere around 34 lakhs. And in Vancouver, in an average company, you will be able to save somewhere around 21 lakhs per year. Obviously, these figures, 34 lakhs, 48 lakhs, and 21 lakhs per year, are in INR. All the rest of the figures for Vancouver are in Canadian dollars. इन दी एंड आई वुड लाइक टू से, जैसा कि हमने देखा कनाडा में आपकी जो सैलरी होगी वो यूएस के कंपैरिजन में काफ़ी कम है. ऊपर से कैनेडियन डॉलर यूएस डॉलर के कंपैरिजन में कम है. ऊपर से टैक्सेस जो है वो कनाडा में बहुत ही ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ यूएस. एंड एक्सपेंसेस या तो सिमिलर है या फिर थोड़े ज़्यादा ही है. तो मेरी अगर आप मानोगे देन आई वुड ऑलवेज से कि अगर आपको यूएस में अपॉर्चुनिटी मिलती है और कनाडा में भी अपॉर्चुनिटी मिलती है देन गो फॉर यूएस फॉर ऑब्वियस रीजंस. अभी कनाडा और इंडिया के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आप ईयर ऑन ईयर थोड़ा एक्स्ट्रा सेव तो कर ही रहे हो, विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एटलीस्ट 14 lakhs अगर आप इक्विवेलेंट फैंग कंपनी में जा रहे हो. बट जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हमें ये माइंडफुल होना पड़ेगा इस बात का कि जो इंडिया में मैंने SD2 की सैलरी ली है वो काइंड ऑफ बॉटम ऑफ द बैंड है और कनाडा की जो ये SD2 सैलरी है वो बॉटम ऑफ द बैंड बिल्कुल भी नहीं है. इनफैक्ट ये लैटरल हायर्स को इतना पे मिलता है. Not only this, there are definitely good companies out there and सारी जो major tech companies है जिनके offices US में है उन सब के offices अभी धीरे धीरे कनाडा में खुल रहे हैं या खुले हुए हैं. So definitely कनाडा का जो tech market है because it is so close to USA वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. Overall I would say Canada is definitely a very good country to relocate to. However, yes, we should be mindful of the fact कि अगर हम कनाडा में relocate हो रहे हैं हमारी जो savings है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी with respect to that of India. I really hope that you are liking this series of country comparison. If you have any other country in mind, comment down below. I'll make it gladly. Not only this, comment down below what different kinds of videos you would want me to make. I'll make them happen no matter what. The like target of this video is 1.5 thousand likes. So go ahead and smash the like button. Subscribe to the channel if you have not already. Share this video among your friends and peers and hit the notification bell. It will definitely help out the channel a lot. This is your host Soumyajit bidding goodbye. Das Vedanya.